So good morning to all of you. Today's topic is classification of data and tabular presentation. होप सो आप लोगों को अब तक जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं वो समझ में आ रहे हैं। आइए आज थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि डाटाज को हम टैबुलर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं और क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। टैबुलर प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन 4-fold classification of data. Here 4-fold standing for there are 4 types. You can say कि 4 प्रकार से हम डाटा को क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्वालिटेटिव बेस पे, सेकंड वन क्वांटिटेटिव बेस पे, थर्ड वन टेम्पोरल बेस पे, फोर्थ वन स्पेशल बेस पे। क्वालिटेटिव स्टैंडिंग फॉर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, दैट इज मेल, फीमेल, राइट, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, अर्बन, रूरल, इस तरीके से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इफ ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी बात करें तो इन द नंबर्स क्वांटिटी में हम प्रेजेंट करते हैं डाटा को। इन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल की बात करें दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बेसिस, 2021, 2022, 2023, 2024 ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। स्पेशल में अगर हम बात करें तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। सो देयर आर 4 ways or 4-fold classification of data. Following are the details with suitable illustrations. आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं with an example. Qualitative classification of data and tabular presentation. डाटा को क्वालिटी के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना, क्लासिफाइड करना और उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना। तो यहाँ से आप एक बात को अपने माइंड में क्लियर करके चलें। If suppose there is a question that classification and tabulation are the one and the same thing, that is incorrect statement. वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज द डिफरेंट थिंग एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन इज द डिफरेंट थिंग। सो qualitative classification occurs when data are classified on the basis of qualitative attributes or qualitative characteristics of a phenomena. Example, data of unemployment may relate to rural and urban areas, skilled and unskilled workers, or male or female job seekers. That will be based on their quality. So whenever you are presenting the data on the basis of quality, that is to be known as qualitative classification of data. Table 6 below is an example of tabular presentation of data. When data are classified on the basis of qualitative attributes or qualitative characteristics, then we can present them in the tabular form. And table can be prepared just like as, जैसे कि हमने बहुत सारी टेबल के एग्जाम्पल बनाकर भी देखे। ये जो डाटा है अगर हम इसको प्रेजेंट करते हैं, it is stated that data of unemployment may relate to rural and urban areas. Here is unemployment, right? That can be classified into 2 ways, on the basis of rural and urban basis. Rural and urban. Number of employees या number of peoples. कितने रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयड हैं, कितने अर्बन एरिया में एम्प्लॉयड हैं. There can be a next column that will be belonging to the total. तो इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है टेबुलर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी. You can see this table reflecting the tabular presentation of unemployment in Punjab by sex and location percentage. That is location and the sex, male or female, on the basis of rural and urban unemployment. Total 20-30 in rural areas, male and female are unemployed, 10-20 in urban areas. Total is 25 and 15. This is an imaginary table. In this table, male and female are such characteristics, attributes which are qualitative and cannot be quantified. ये qualitative basis पर है, इनको quantity के बेस पे हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं. Second one is
क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, बेटा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन आपने चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हमने क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए और उनका टेबुलर प्रेजेंटेशन हम यहाँ सीखने वाले हैं। जब हम बात करते हैं क्वांटिटी के बेस पे तो इसका मतलब है इन द न्यूमेरिकल टर्म्स हम बात करना चाहते हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन occurs when data are classified on the basis of quantitative characteristics of a phenomena or a process. एग्जाम्पल के तौर पर डाटा ऑन मार्क्स इन मैथमेटिक्स बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 in CBSE examination. Table 7 shows tabular presentation of data when data are classified on the basis of quantitative characteristics. जब डाटा को आप क्वांटिटेटिव बेसिस पर कैरेक्टराइज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. एंड द टेबुलर प्रेजेंटेशन यू कैन सी इन द टेबल नंबर 7. एज यू हैव studied already about the series, this is your 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. This is a continuous series, and under this continuous series what you have the number of students of 3, 7, 12, 22, which generally depicted about the marks obtained by students of class 12 in XYZ school. That can be HR Greenfield school or any other school. तो उस स्कूल में क्लास 12वीं के बच्चों के कितने नंबर आए हैं, 20 से 30 की रेंज में, 50 से 60 की रेंज में, 90 से 100 की रेंज में. ये टेबल इस डाटा को प्रेजेंट करती है. एंड दिस इज योर क्वांटिटेटिव डाटा. इस प्रकार से डाटा को जब हम क्लासिफाइड करते हैं क्वांटिटी के बेस पे तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है. और टेबुलर प्रेजेंटेशन जब करते हैं तो हम डाटा को इस तरीके से टेबल नंबर 7 जैसे कि आपके सामने है इस तरीके से इसको प्रेजेंट करके चलते हैं. यहाँ फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, classification and tabulation are the different things. Classification is generally based on particularly either on quantitative, qualitative and the time basis or the location basis, and tabulation is also to be presented on these basis, but that is in the tabular form, not in the classified form. Data को हम raw material में collect करें, that is your collection of data. उसको हम अगर एक यूजफुल फिगर्स में कन्वर्ट करें, दैट इज योर क्लासिफिकेशन. उन फिगर्स को यदि आप टेबुलर वे में प्रेजेंट करते हैं, रो एंड कॉलम वाइज प्रेजेंट करते हैं, दैट इज योर कॉल्ड टेबुलेशन प्रोसेस. तो टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. रिमेंबर दिस थिंग. ये क्वेश्चन आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है. लर्निंग बाय डूइंग. Here, marks are a quantified variable and data are classified in the terms of different class intervals of the marks. So, जो marks presentation है, that is your quantifiable variable. Quantity के बेस पे इसको हमने यहाँ पर present किया है. कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, जो कि मैंने आपके असाइनमेंट में भी डाले हैं आज के. पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल प्रेजेंटिंग डाटा कलेक्टेड बाय यू on preferential liking of your classmates of different teachers in your school. तो जो आपके स्कूल में आपके क्लासमेट्स हैं वो जो टीचर्स हैं आपके स्कूल के उनको किस तरीके से पसंद करते हैं, या वो किस किस टीचर को कौन कौन बच्चे किस तरीके से पसंद करते हैं, उनकी आपको टेबल प्रेजेंट करनी है. वेयर यू कैन टेक द इमेजरी डाटा. अगर आप इमेजरी डाटा लेकर बनाए देन दैट इज ओके ऑल्सो. आप इमेज डाटा लेकर से बना सकते हैं. कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन मार्क्स इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल इन द हाउस एग्जामिनेशन. दैट द अबव एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड 12th क्लास स्टूडेंट्स मार्क्स, दैट इज द सेम एज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस वन आल्सो. कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन मार्क्स इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. तो आप इसको जैसे ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ा उसके आधार पर बना सकते हैं. कंस्ट्रक्ट अ टेबल on the runs scored by different players in the inter-school cricket tournament hosted by your school. आपके स्कूल के द्वारा एक इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट होस्ट किया गया, उसके लिए आपको जो अलग अलग प्लेयर्स हैं उन्होंने नेक्स्ट है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन. डाटा को
जो है टाइम बेसिस पर क्लासिफाइड करेंगे और उसको टेबुलर प्रेजेंटेशन में शो करके चलेंगे। इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड टाइम बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल। और जब हम टाइम के बेसिस पर क्लासिफाइड करते हैं तो उस पार्टिकुलर क्लासिफिकेशन में टाइम हमारा क्लासिफाइंग वेरिएबल बनता है। जैसे क्वांटिटी के बेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और हमने क्वालिटी के बेस में बात की थी तो रूरल, अर्बन, मेल फीमेल जो है वो हमारा क्वालिटी बेस पे क्लासिफिकेशन हमने करने की कोशिश की। इसी तरीके से टेम्पोरल क्लासिफिकेशन के अंदर हम टाइम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे और टाइम जो है हमारा वो क्लासिफाइंग वेरिएबल यहाँ पर बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सेल ऑफ सेल फोन्स इन डिफरेंट ईयर्स ड्यूरिंग द पीरियड 2015 एंड 19 इन द सिटी ऑफ दिल्ली। 2015 से 19 तक दिल्ली सिटी के अंदर टोटल कितने सेल फोन की बिक्री हुई। यदि हम इस बेस पर बात करते हैं 2015 से 19 तक, दैट इज योर टाइम बेस्ड स्टडी। तो इस टाइम पीरियड के दौरान सेल फोन की सेल कितनी हुई, अगर इसको हम इस प्रकार के डाटा को हम लिखते हैं तो दैट इज योर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब इसी डाटा को यदि आप टेबुलर फॉर्म में लिख दें तो दैट विल बी कॉल्ड एज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ दैट डाटा। आइए टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देखते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, एनुअल सेल ऑफ सेल फोन्स इन द सिटी ऑफ दिल्ली 2015-2019 ईयर 2015-16 to 19 sales 50,000 units, 70,000 units, 90,000 units, 2 lakh units. This is your tabular presentation of temporal classification of data. यहाँ पर इसी से रिलेटेड हमारे दो क्वेश्चन हैं, that is based on the learning by doing. First question है, check with your principal request him to provide you information on the number of students in the school over the last 10 years. पिछले 10 साल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके स्कूल में कितने रहे, इसको अपने प्रिंसिपल की मदद से आप चेक करिए एंड प्रेजेंट द डाटा इन ए टेबल बेस्ड ऑन द टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। तो हमने पिछले 10 साल जो लिए दैट इज योर टाइम बेस्ड स्टडी, हम उसके बेस पे स्टडी कर रहे हैं और डाटा को जब प्रेजेंट करेंगे तो पिछले 10 साल कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 2000 टू 2010, 2010 टू 2019 और 2012 टू 2022, यहाँ तक हम डाटा इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। उनमें आप स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ लिख सकते हैं पूरे स्कूल में कितनी रही। सपोज करिए अगर मैं करंट ईयर की बात करूँ तो आपके स्कूल में टोटल 800 स्टूडेंट्स हैं, तो 2020 के लिए 800 और उससे ऊपर हम जितने भी स्टूडेंट्स की संख्या रही वो संख्या लिख लेंगे। दैट कैन बी इमेजिनरी फिगर। अगर आप स्कूल में आकर विजिट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप इमेजिनरी टेबल लेकर इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है, गो टू ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, बर्थ्स एंड डेथ्स ऑफ योर टाउन, मेक अ रिक्वेस्ट फॉर डाटा ऑन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स registered during different years over the last 10 years. Present the data in the form of table showing the temporal classification of data. Now here basically two bases are there, births and deaths. तो year and classification में हम जो लिखेंगे डाटा जो क्लासिफाइड कर रहे हैं वो टेम्पोरल बेस पे कर रहे हैं तो ईयर्स आ जाएंगे और यहाँ पर हमारी आ जाएगी रेट, बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। तो नंबर ऑफ बर्थ, नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of children who have taken the birth, who got died. तो ये बर्थ्स की संख्या लिख लेंगे और डेथ की संख्या हम लिख लेंगे। That will be classification of your data on the basis of temporal classification. तो इस तरीके से आप डाटा को प्रेजेंट करके यहाँ पर चलेंगे। Last but not the least, that is spatial classification. Under this spatial classification, हम लोग लोकेशन बेस्ड डाटा को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। In spatial classification, a place or location becomes the classifying variable. डाटा को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसमें प्लेस या लोकेशन हमारा क्या बन जाता है, क्लासिफाइंग वेरिएबल बन जाता है। इट मे बी ए विलेज, ए टाउन, ए डिस्ट्रिक्ट, ए स्टेट और ए कंट्री और एज ए होल। एग्जाम्पल,
number of Indian students studying in different countries of the world during a particular year. राइट, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, या हम एग्जाम्पल ऐसा भी ले सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस ऑफ योर स्कूल। तो आपके स्कूल में अलग अलग गांव से कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनका एक टेबुलर प्रेजेंटेशन करके दिखाइए ऑन द बेसिस ऑफ villages, that is location based, place based, right? So table 9 is an example of tabular presentation based on the spatial classification of data, like Indian students in different countries of the world 2019, USA, UK, Japan, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये हमारी कंट्रीज हैं। इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, यूएसए में 50,000, यूके में 15,000। these are the classified data and imaginary data, you can take it as an image on the basis of imaging। अगर एक्चुअल डाटा आप कलेक्ट कर लेते हो तो यू कैन प्रेजेंट द टेबल इन द एक्चुअल फॉर्मेट, it is depending upon you। so these are the 4 types of classification what we have discussed today। and next one we have learning by doing। there are 2 questions in the learning by doing, and these questions are: get information on native state of students in your school। here is written that native state that can be your particularly हरियाणा, पंजाब, जो है उत्तर प्रदेश, इस तरीके से आप स्टेट ले सकते हैं। या फिर हम बात करें तो यहाँ पर विलेजेस का एग्जांपल आप लेके लिख लें। विलेजेस, आपके स्कूल में अलग अलग विलेजेस से कितने बच्चे हैं, उनका डाटा आप कलेक्ट करिए और प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल शोइंग स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है गेट इंफॉर्मेशन ऑन द लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस ऑफ डिफरेंट बैंक्स इन योर लोकेलिटी, प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल शोइंग स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो हेड ऑफिस ऑफ डिफरेंट बैंक्स इन योर लोकेलिटी, जहाँ उनकी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और उन डाटा को लोकेशन बेस्ड, यानी किस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या किस पार्टिकुलर विलेज में जो है पार्टिकुलर हेड ऑफिस लोकेटेड है, उनका नाम लिखिए, उन प्लेसेस का नाम लिखिए, डाटा को प्रेजेंट करिए। नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन की बेसिक मेरिट्स क्या है? व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ए टेबुलर प्रेजेंटेशन? तो पहली मेरिट है बेटा सिंपल एंड ब्रीफ। ध्यान रखिएगा, जब भी डाटा को आप टेबुलर वे में प्रेजेंट करते हैं तो डाटा आपका क्या बन जाता है? सिंपल बन जाता है और ब्रीफली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज परहैप्स द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने 1 नंबर का, विच वन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन, देन योर मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन विल बी simple, that is your tabular presentation. This is the one of the merit of tabular presentation, that it makes the data simple and explanatory form. Data therefore are easily understood. Also a large volume of statistical data is presented in a very brief form। इसमें बड़े डाटा को हम बड़े सिंपल तरीके से और ब्रीफ फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस दैट विल बी द मेरिट ऑफ योर टेबुलर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। डाटाज को जब हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो दैट बिकम्स द कंपेरेबल। द टेबुलेशन फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ डाटा बाय प्रेजेंटिंग द डाटा इन डिफरेंट क्लासेस। तो अलग अलग क्लासेस के अंदर डाटाज को हम जो प्रेजेंट करते हैं तो वो इस तरीके से प्रेजेंट हो जाता है, इस तरीके से उसको हम डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो इजीली कंपेरेबल हो, उसको आसानी से समझा जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके। इजी एनालिसिस, एनालिसिस करना आसान होता है। इट इज वेरी इजी टू एनालाइज द डाटा फ्रॉम टेबल्स। इट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल दैट वंस फाइंड आउट देयर सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड कोरिलेशन। About these topics we will read a detailed study in the coming next chapters। हम आने वाले चैप्टर्स में इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं सेंट्रल टेंडेंसी का ले रहा हूँ। मान लीजिए सेंट्रल टेंडेंसीज के बेस पर हमें ये चेक करना है कि पूरी क्लास में एवरेज जो है मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट्स के, तो दैट कैन बी इजिली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द टेबल्स। हम टेबल के थ्रू उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हाईलाइट्स
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, जो डाटा होता है उसकी पार्टिकुलरली क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, उन करेक्टरिस्टिक्स को भी टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंट करती है। टेबुलेशन हाईलाइट्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, लाइक the data are based on the male and female, data are present on the rural and urban areas, data are present on the skilled and unskilled labors, right? According it becomes easy to remember the statistical factor, और डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को जब ये टेबुलर फॉर्म आसानी से प्रेजेंट करती है तो उसको हम याद भी अच्छे से रख सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। Tabular presentation is a very economical mode of data presentation and it saves time as well as space. इस समय की भी बचत करता है और टाइम भी बचाता है। इकोनॉमिकल का मतलब है कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा बड़े डाटा को इजिली प्रेजेंट कर पाते हैं और इजिली इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द tabular presentation or merits of the tabular presentation. Next one topic is regarding to some miscellaneous illustrations. मिसलेनियस इलिस्ट्रेशंस में पहला इलिस्ट्रेशन आप देखें बेटा क्या है, दैट इज प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल टू शो द परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1981, 1991, 2001 एंड 2011। अगर मैं बात करूं आपसे तो हमने यहाँ सेंसेक्स ईयर लिए हैं। आफ्टर एवरी 10 ईयर वी डू द दैट इज पॉपुलेशन काउंटिंग। तो सेंसेक्स ईयर लिए हैं हमने, और ये सेंसेक्स ईयर हमने अगर टाइम्स के बेसिस पे लिए तो यू कैन से दैट इज ए टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ब्लैंक टेबल मेंटेन करनी है। तो हाउ वी कैन प्रिपेयर द ब्लैंक टेबल, दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। मेक द सेंसस ईयर हियर 1981 to 2011, percentage of population in rural areas and in urban areas and the total, that it can be a blank format of the percentage of rural and urban population in India in 1981 to 2011। आइए नेक्स्ट सेकंड इलिस्ट्रेशन और देखते हैं हमारा क्या है। दिस इज द सेकंड इलिस्ट्रेशन बेटा, ये दूसरा इलिस्ट्रेशन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट आउट mistakes in the following table and rearrange it in a form of good table। इस टेबल में आपको गलतियां ढूंढनी है और उसको एक अच्छी टेबल में प्रेजेंट करना है। तो रिमेंबर दैट जब आप टेबल बनाते हैं तो यू हैव टू राइट द ऑल पार्ट्स ऑफ योर टेबल, दैट आर द हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ऑफ योर टेबल्स। टेबल्स के जो पार्ट होते हैं उनको हमें यहाँ मेंशन करना है, वो यहाँ मिसिंग है। उनमें क्या क्या मिसिंग है, सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो देयर इज नो टेबल नंबर, टेबल नंबर नहीं है, टेबल नंबर 1 2 3 एंड नो टाइटल ऑफ द टेबल इज गिवन। देखिए टेबल का टाइटल भी कोई गिवन नहीं है, किससे रिलेट करता है डाटा हमें कोई आइडिया नहीं है और ना ही हम इससे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। द टेबल इज विदाउट एनी हेड नोट, और ना ही कोई पर्टिकुलर ऐसा हेड नोट है जो टेबल के टाइटल को क्लियर कर दे कि वो टेबल किसके बारे में है। कैप्शंस एंड सब एंट्रीज हैव नॉट बीन प्रॉपर्ली नोटेड, जो कैप्शन और आपकी सब एंट्रीज हैं वो प्रॉपर्ली नोटेड नहीं है। नोटेड नहीं है इट मींस नोटेड नहीं है, इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर लेस देन 20 20 to 30 30 to 40 40 एंड अबव, इसके ऊपर कोई भी हमारा कॉलम जो है कैप्शंस नहीं है, ना ही यहाँ पर हमारे पार्टिकुलरली जो है रो जो हेडिंग्स होती हैं, रो जो है हमारी बेसिकली उनके स्टब्स हैं मेंशन। तो captions and sub entries are not been properly noted and literacy and age be divided according to the caption and sub entries respectively। total of rows and columns has not been indicated, और ना ही ये बताएगा कि कितनी रो और कितने कॉलम्स है। तो इसी टेबल को अगर हम ठीक से प्रेजेंट करें तो दैट कैन बी द लाइक वन, इस प्रकार से हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हम शो करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स एंड लिटरेसी रेट and it is in lakhs। literate and illiterate peoples, literate की तो ऊपर जो है डेफिनेशन दी थी बेटा, लिटरेसी तो दी हुई है लेकिन ये बताया नहीं है ना कि यहाँ पर लिटरेट भी गिवन नहीं है ना। लिटरेट ये रहा, लिटरेट तो गिवन है लेकिन लिटरेट में
सिंपल लिखा मेल एंड फीमेल, लेस देन इतना 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 उतना। जबकि लिटरेट और इलिटरेट डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे ताकि इजीली कंपैरिजन किया जा सके। ठीक है, लेस देन 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 and above, there will be the male and female total, मेल एंड फीमेल टोटल। तो इस तरीके से हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी एक दो चीज मिसिंग है, लाइक डाटा हमने कहाँ से लिया है, सोर्स और जो है उसका पार्टिकुलरली नोट, ये मिसिंग है यहाँ पर, हम ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इलिस्ट्रेशन थर्ड, in a sample study about the coffee habits in 2 towns, following data were observed. ये डाटा ऑब्जर्व किया गया टाउन X का, टाउन Y का। क्या था, 52% persons were males out of 100, 25% were coffee drinkers out of 100, 16% were male coffee drinkers, 16% जो है वो क्या है, मेल कॉफी ड्रिंकर्स है। ठीक है, उनमें से तो जो 52% मेल थे उनमें से 16% क्या है, मेल कॉफी ड्रिंकर्स हैं। नेक्स्ट है 55% वर मेल्स, 28% वर कॉफी ड्रिंकर्स एंड 18% वर मेल कॉफी ड्रिंकर्स। रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन ए टेबुलर फॉर्म। आपको इस डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ यू कैन प्रेजेंट द डाटा इन द टेबुलर फॉर्म, हमारे पास यहाँ मेल और दूसरा जो एलिमेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फीमेल, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर है ना, मेल के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे दी, फीमेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो डेफिनेटली मेल अगर है तो बाकी जो बच गए वो क्या है, हमारे फीमेल्स। तो टाउन एक्स और टाउन वाई, ठीक है, टाउन एक्स और टाउन वाई में कितनी मेल्स कितनी फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, कितने मेल्स कितने फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स जो कि कॉफी ड्रिंकर्स हैं और जो कि नॉन कॉफी ड्रिंकर्स हैं। इस तरीके से हम इन एट्रीब्यूट्स के बेस पर, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डाटा को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 4, उसके बाद अपनी क्लास को हम आज वाइंड अप करते हैं, उसके बाद बचा हुआ टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, देयर वर 80 persons इन ए ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय ए स्कूल, लाइक 80% है एक ट्रिप के अंदर जो कि स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, आउट ऑफ विच 60 वर स्टूडेंट्स एंड 14 वर टीचर्स एंड 6 आर मेल्स वर पियंस, राइट। 6 जो कि सारे के सारे मेल हैं वो पियंस हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से 80% हैं। आउट ऑफ टोटल पर्सन्स 16 वर फीमेल्स इंक्लूडिंग 1 लेडी टीचर। इसका मतलब है जो 16 है वो टोटल फीमेल्स हैं, जिसमें से एक लेडी टीचर भी है। तो इसका मतलब बाकी जो बच गए वो कौन है, स्टूडेंट्स हैं। अगर 16 फीमेल हैं और उनमें एक लेडी टीचर है तो बाकी 15 जो बचे वो क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। प्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन ए टेबल। तो सबसे पहले तो आप डाटाज को जो है क्लासिफाइड करें ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, मेल फीमेल, टीचर्स मेल फीमेल एंड द पियंस ना। इस तरीके से डाटा क्लासिफाई करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स चेक करें पहले कितनी है, 16। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है हमारे पास, फीमेल टीचर में एक जो कि गिवन है, और नंबर ऑफ फीमेल्स अमंगस पियंस एक भी गिवन नहीं है। तो हैंस द नंबर ऑफ फीमेल अमंगस स्टूडेंट्स कितने हुए हमारे पास, 15। एक तो हमने ये डाटा यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। दूसरा, नंबर ऑफ मेल अमंगस स्टूडेंट्स हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। अमंगस स्टूडेंट्स यदि मेल की बात करें तो टोटल इन्होंने बताया था हमें कि 60 स्टूडेंट्स हैं। डाटा देखिए, 60 वर स्टूडेंट्स, और 60 स्टूडेंट्स के अंदर हमने चेक की फीमेल स्टूडेंट्स कितनी है, 15। तो 45 मेल स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ मेल अमंगस टीचर्स कितने हैं। अब बात करते हैं टोटल जो टीचर्स बताए थे, दैट इज 14 टीचर्स हमें बताए गए थे, जिनमें से एक जो है वो लेडी टीचर है। तो इसका मतलब मेल टीचर कितने हुए हमारे, 13 हुए मेल टीचर्स। तो इस तरीके से हमने डाटा को क्लासिफाइड कर लिया। नाउ वी विल प्रेजेंट इट इन टेबुलर फॉर्म। अगर टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें तो हमारे पास ग्रुप हो जाएंगे, ट्रिप ग्रुप्स। कौन कौन से हैं, स्टूडेंट्स के, टीचर्स के एंड पियंस के। उनमें भी ऑन द बेसिस ऑफ यदि सेक्स बात की जाए तो मेल और फीमेल, कितने मेल टीचर हैं, कितने मेल फीमेल टीचर हैं, या कितने मेल स्टूडेंट्स कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से हम डाटा को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे।
तो टोटल मिलाकर हमारा दोनों तरफ से रो वाइज और कॉलम वाइज अगर चेक करें तो दैट विल शुड बी 80, वो 80 होना चाहिए हमारा, तो इट इज 80, सो दैट विल मींस योर टेबल इज नियर अबाउट टू करेक्ट। आप इसमें जो है ना एक चीज लिख सकते हैं, टेबल नंबर दे सकते हैं इसको, अगर इसको कंप्लीट करना चाहें तो टेबल नंबर दे सकते हैं, और ऊपर एक हेडिंग दे सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स एंड टीएन ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज योर लास्ट टॉपिक फॉर द टुडेज क्लास। आई होप आपको जो है आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इलस्ट्रेशन 5th से। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।